Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uh, as I have been introduced by our host, Mr. Saeed Ishtiyaq and other guys, I am Dr. Khalid Rahman Hakim, working in King Abdul Aziz University as full professor. And I have been given the task to just provide you the details about the career development and the opportunities available throughout the world. So I think it's better not to speak in English only, because I know the main aim of this talk is to provide the exactly information, the opportunities to all the friends, students, girls as well as boys back home. So इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर शुरू करूं, सबसे पहले मैं कुछ आपसे बताना चाह रहा हूं, वो ये कि आप अपना जो माइक है ना वो अपना म्यूट कर लें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिन चीज़ों की तरफ मैं तवज्जो आपको दूं उनको आप अच्छी तरह से ज़हनशी करें, क्योंकि ये जो हम आज का हमारा जो लेक्चर होगा, इट विल बी एक्चुअली द प्रैक्टिकल बेस्ड लेक्चर, जो मैंने 10 साल से तकरीबन 5-8 कंट्रीज घूम के जो मैंने एक्सपीरियंस हासिल की है, और उसके बेस पे हमने एक ग्रुप भी बनाया है जिसको हमने नाम दिया है कश्मीर गाइडेंस. It is actually depending upon my personal experience and the experience of all the other friends back home. Okay? और जो मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डिविजन्स में काम कर रहे हैं. So my topic is a practical topic. I will give some points to all of the participants back home. मुझे पता है कि हमारे पास कौन से issues है, कौन से problems है, because I am also the son of the soil. So let us start our presentation. It is the title, the career development, hitting the bull's eye. कैसे हम अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं और कैसे हम अपने जो हमारी जो करियर की जो ऊंचाई है उस तक पहुंच सकते हैं. So friends, as you know that this is starting with my university. I am basically in King Abdul Aziz University. जो हमारी यूनिवर्सिटी है is in Jeddah, and it is one of the oldest universities in Saudi Arabia. It's starting in 1967, and this time it has the global ranking, because आपको मैं एक चीज बताऊं कि हमारे पास ग्लोबल रैंकिंग होती है जो बुनियाद बनाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड सबसे बेहतर कर रही है. So in the universities around the world, our university is having 231 position, and in the Arab world, our university is number 1. So इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह आजकल काम पूरे दुनिया में चल रहा है. And as all the universities in Saudi Arabia and the Gulf, our university is also providing the scholarship. और आजकल हमारी यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन है वो ओपन है. इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा. सो आप भी इसमें एडमिट हो सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी इसमें एडमिट हो जाए उसको फुल फेलोशिप मिल जाएगी. उसका फीस और उसका जो मंथली स्कॉलरशिप है वो भी उसको मिल जाएगा. सो एज I have been introduced that I am not working in Saudi Arabia alone, but I am working in other universities also. So I have different collaborations, starting from working in Brunei Darussalam, also working in Sweden. We have some collaborations in Faisalabad University, Pakistan, and also we are working with Indian universities like Jamia Hamdard, University of Kashmir, Jamia Millia Islamia. These are my students in China. I am working in Malaysia, and I have a very strong collaborative group which we are working together with Turkey. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जो बच्चे ये कुछ लिख रहे हैं थोड़ा सा इसको ना लिखें, इसको आप डिलीट कर लें, ताकि ये जो तमाम चीज़ें हैं हमारी रिकॉर्ड में आ जाए, और इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमें अगर बाद में भी इसको देखना हो तो हम उसको देख सकते हैं. अगर मैं इन्हीं चीज़ों पे लगूं कि मैं इनको मिटाऊं और फिर मतलब आपकी तरफ में तवज्जो दूं, तो मेरा जो लेक्चर है वो फ़ायदामंद नहीं होगा. ठीक है. जितने भी स्टूडेंट्स ये लिख रहे हैं ना, उनको मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो थोड़ा सा ये चीज़ें ना लिखें. ये स्केच सा बना रहे हैं, प्लीज बी सीरियस इन द ग्रुप, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस व्हाट आई कैन से a trial from my colleagues back home. So हम ये चाह रहे हैं कि ये जो प्रेजेंटेशन है, इस तरह के प्रेजेंटेशन
आपको इससे फायदा मिले। ठीक है, तो ये जो स्केच सा बना रहे हैं ना, इनको ना बनाए आप, क्योंकि इससे हम ज्यादा फायदा हासिल कर सके। ओके, एनीवे, सो ये हमारी सिचुएशन होती है जब भी हम कोई भी करियर के लेवल पे आ जाते हैं। सपोज आवर करियर प्रीवियसली इट वाज स्टार्टिंग व्हेन वी कंप्लीट आवर 10th क्लास। अब तो 10th की कोई वैल्यू नहीं है। आफ्टर 10th हमारे पास आप देखिए कितने सारे बेरोजगार हैं, जॉब्स नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट, वी आर कंप्लीटिंग आवर 10+2, क्योंकि 10+2 के बाद हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। So this situation is like when we are at 10+2, or when we are at after the graduation, maybe BSc or BA, or we will complete our master even after we complete our PhD. The same situation, what is in the mind of this athlete, ये हमारे पास सिचुएशन रहती है, क्योंकि एथलीट के साथ और भी लोग भागते रहते हैं। और आपको फेमस ये कोट पता है कि जिंदगी एक रेस है, लाइफ इज अ रेस, और इस रेस में आपको दूसरे साथियों के साथ दौड़ना भागना है। ओके, सो यू हैव टू सी व्हाई द कंपनी इज एक्वायरिंग यू, व्हाई you have to acquire this seat, or why you and how you will achieve this goal, whether you have many other people working with you and they are also running in the same race. So आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो भी आप काम हासिल करना चाह रहे हैं, जिस करियर में आप जाना चाह रहे हैं, आपके साथ आप अकेले नहीं हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे कश्मीर की अगर हम बात लें, हर साल हमारे पास ग्रेजुएट्स की एक फौज निकलती है, मास्टर्स की एक फौज निकलती है, और 10th के बाद तो हमारे पास बच्चों की माशाल्लाह तादाद भी बड़ी है। 10+2 के बाद कॉलेजेस हमारे पास बहुत कम है, हमारे पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं है। तो ये सिचुएशन हर एक बच्चे के साथ होती है, और ये सिचुएशन आप अंदाजा लगाएं जो एथलीट के दिमाग में है कि मुझे 100 मीटर अभी रेस दौड़नी है, इस 100 मीटर रेस में मैं सबसे आगे कैसे बढ़ूं। ये सिचुएशन हर एक उस बच्चे के साथ होती है जो 10 पास करता है, 11th पास करता है, 12 पास करता है, या जो 10+2 के बाद जो ग्रेजुएशन होती है उसमें आगे बढ़ जाता है, या मास्टर या PhD के बाद। सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड इज चेंजिंग नाउअडेज, इट इज कंप्लीटली चेंज। आजकल का जो दुनिया है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जब हम आपके उम्र में थे, जब हम छोटे थे, उस वक्त दुनिया कुछ अलग रेंज में थी। टुडे द वर्ल्ड इज कंप्लीटली चेंज। One time when we were there, that time we were having the option only in Kashmir that you have to go for MBBS or engineering. We don't have any other option that time. और अगर आप इंजीनियरिंग या MBBS में नहीं जाते थे तो हमें कहते थे अब आप बेकार लौट, आपके पास अब कोई ताकत नहीं, अब आप कुछ नहीं कर सकते। But since then, in these 10 years or 12 years, whole world is changing now. The reason for changing is number one, population, आपको पता है कि growth increase है, रिसोर्स कंजप्शन हमारे पास बहुत ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज इन द वर्ल्ड, लाइकवाइज पोल्यूशन, आपको पता है पोल्यूशन वर्ल्ड वाइड कितना बड़ा इशू है। सिमिलरली आपको ये भी पता है कि रैपिड जो डिक्लाइनिंग है बायोडाइवर्सिटी की, दिस इज वन ऑफ द इश्यूज। फ्रैगमेंट लॉसेस हो रहे हैं, इन्वेसिव पेस्ट बढ़ रहे हैं, नए नए बीमारियां आ रही हैं। कोविड-19 आपको पता ही कितना बड़ा मुसीबत है, पैंडेमिक है। ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लोग जा रहे हैं। अब आगे कहते हैं कि 4-5 साल के बाद अब आप देखेंगे बहुत कम लोग जॉब करेंगे, अक्सर काम जो है रोबोट्स करेंगे। मशीन लैंग्वेज बढ़ गई है, मॉरल और इथिक्स जो इश्यूज है, जो एक जमाने में इश्यूज माने जाते थे, वो अब नॉर्मलाइज है। इसी तरह मैनेजमेंट के इश्यूज पूरे दुनिया में बढ़ रहे हैं। तो आपको पता, मैं बताऊं आपको एक इंपॉर्टेंट इशू में बताऊं कि वर्ल्ड वाइड जब भी हम बाहर जाते हैं ना, कश्मीर से बाहर या इंडिया से बाहर, असल में क्या होता है कि हर एक के लिए कोच होता है। जैसे आपको पता है, हमें पता है कि क्रिकेट में कोच हमारे पास है, फुटबॉल में हमारे पास कोच है। इसी तरह अगर बाहर के मुल्कों में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास मैनेजमेंट भी कोच होते हैं, आपके पास पर्सनल कोच भी होते हैं, और इसी तरह आपके पास एजुकेशनल कोच भी होते हैं। जो हमारे कश्मीर में हम कहते हैं ना कोचिंग सेंटर, असल में उनको कोचिंग सेंटर नहीं कहना चाहिए, उनको कहना चाहिए ट्यूशन सेंटर। कोचिंग अलग चीज है। कोचिंग क्या होता है? कोचिंग ये होता है कि आपको तैयार किया जाए दुनिया भर में जो इंकलाब आ रहा है, वट एवर द थिंग्स रेवोल्यूशंस आर गोइंग आउट इन द वर्ल्ड, यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड आफ्टर 10 years जॉब की कंडीशन क्या रहेगी, करियर्स क्या रहेंगे, किस जॉब में ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, और 10 साल के बाद उसका क्या वैल्यू होगा। सो एवरी कंट्री दे हैव व्हाट वी कॉल्ड एज द कोच,
वी आर कॉल्ड देम द एजुकेशनल कोच। ये कंसेप्ट अभी हमारे कश्मीर में नहीं है, हम ट्यूशन और कोचिंग को मिलाते हैं। एक्चुअली कोचिंग एक अलग एक सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे को हम तैयार करते हैं कि उसको क्या करना चाहिए। वी हैव स्टार्टेड सिंस 3 years a group, we called it कश्मीर गाइडेंस। उसके थ्रू हमने अब ये कोचिंग शुरू की है एंड इट्स कंप्लीटली फ्री। वी कॉल्ड इट ज़कातुल इल्म। हम उसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं। हम बच्चे को कोच करते हैं कि वो खुद इसको पता चले कि आफ्टर 10+2 आफ्टर ग्रेजुएशन कौन से एवेन्यूज बाहर के लिए है और उसके लिए पहले से तैयारी क्या करें। देखिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अभी आपने पता है कि इंडिया में अब नीट चल रहा है और नीट ये है कि आपको पूरे इंडिया लेवल पे आपको आप एग्जाम देना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। वन ऑफ द इश्यूज व्हिच वी कश्मीरीज फेल्ट इज दैट वी वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नीट एट दैट टाइम। हमें आम लोगों के साथ, आम स्टेट्स के साथ बराबर रखा गया था और ये कहा गया है कि आप उनके साथ मुकाबला करो। Problem with Kashmir is that, and our students is that, we have a very narrow vision in Kashmir. याद रखिएगा, इसको हमें एडमिट करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं, उन रीजंस को मैं भी डिस्कस नहीं करूंगा, बट वी हैव टू एडमिट इट दैट वी हैव मेनी इश्यूज बैक एट कश्मीर। नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी भी कोचिंग सही नहीं है। वो भी अपने बच्चे को किसी भी तरह, चाहे उनको लोन लेना पड़े, एमबीबीएस बच्चे को भेजना है बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में और कराना है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। जिसको एमबीबीएस की चाहत हो वो उसमें जाए। मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें हमारे पास है। और जो पेरेंट्स के पास, क्योंकि हमारे पास कोचिंग गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती है, फैमिलीज कोचिंग अवेलेबल नहीं होती है, पेरेंट कोचिंग अवेलेबल नहीं होती है, स्टूडेंट कोचिंग अवेलेबल नहीं होती है, कॉलेजेस में ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। सो एवरी टाइम एट एवरी स्टेज आवर स्टूडेंट इज फेसिंग द डिलेमा। उस डिलेमा को दूर करने के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स आपके लिए बनाए, 2-5 मिनट में उनको बताऊं। नंबर 1 आइडिया इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आवर पेरेंट्स एज वेल एज आवर स्टूडेंट्स दे शुड नो कि उनके पास कौन से स्ट्रेंथ है और कौन से आउटकम्स है। देखिए हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, ना हमें बनाने की जरूरत है। हर एक बच्चे का अपना एक कैलिबर है। आपको बेसिकली पेरेंट अपने बच्चे का कैलिबर देखना है कि उसको किसकी तरफ तवज्जो है। नेचुरली आपका बच्चा ये नहीं जानता कि उसको क्या करना है, इसीलिए जो एक कोच होता है, करियर गाइड होता है, वो उसको बताएगा कि अभी क्या क्या मार्केट में जा रहा है। जैसे मैंने भी आपके सामने कुछ चीजें बताई, और ये 10 साल के बाद क्या होगा। आप अपने बच्चे को इसके लिए कन्विंस कीजिए कि अभी आपके पास क्या है और क्या होने वाला है, particularly after we complete our graduation, master and PhD. So before we start our career, there are some strategies we have to formulate to complete our career, to excel our career, what we can say. Number 1 is that we have to utilize our strengths. We have to see what sort of strength we have. देखिए एक्सेलेंस सबसे बड़ी चीज है। अगर आपका उर्दू सब्जेक्ट है ना, या आपका ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट है, या आपका कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम अपने जबान में जानते हैं कि कोई वैल्यू ही नहीं, आपको याद रखना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का वैल्यू है। सिर्फ इसलिए आपको एक्सीलेंस उस सब्जेक्ट में करना है। आपके सामने मैं एक दुबई मॉडल दे दूंगा। दुबई में एक मॉडल है, दुबई का एक मॉडल है। वो मॉडल ये है कि दुबई वाले एक ही चीज करते हैं, या तो जब दुनिया ने कोई भी चीज नहीं किया, दुबई कहते हैं कि हम फर्स्ट कंट्री होनी चाहिए जो हम वो काम करें। जैसे हाइपरलूप का कंसेप्ट अभी कहीं नहीं है, दुबई कह रहा है कि फर्स्ट कंट्री होगी जहां हाइपरलूप होगा। सिमिलरली ये तो होगा कि कहीं नहीं है, सिर्फ आप कर रहे हैं, तब तो कोई कंपटीशन होगा नहीं। तो आप कभी भी किसी भी कंट्री में जाइए तो हर आपके पीछे जाए। दूसरा ये है कि अगर आपके पास अब वही बीटन ट्रैक लेना है जो ऑलरेडी मार्केट में है, तब आप उस सब्जेक्ट में एक्सीलेंस कीजिए। सपोज अगर आप अच्छे डॉक्टर है, अब एमबीबीएस तो चारों तरफ है, मगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है। अगर आप सपोज पोइट्री ले रहे हैं या लिटरेचर ले रहे हैं, तो आपको लिटरेचर में सबसे बेस्ट बनना है, शेक्सपियर के मुकाबले में बनना है। अगर आप वो एक्सीलेंस अपना एक्वायर कर ले, तब दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां से आपके पास ऑफर्स ना आए। प्रॉब्लम देखिए दुनिया भर में है, सिर्फ कश्मीर में प्रॉब्लम नहीं कि हमारे पास जॉब नहीं। The problem lies with all over the world. Every country has the issues. Every country has the problems that उनके पास jobs नहीं। Particularly post pandemic, आप देखेंगे जो पैंडेमिक शुरू हुआ उसके बाद चारों तरफ से जॉब्स की कमी हुई। हर एक कंट्री ने ले ऑफ कर दिया, जॉब्स निकाल दिए, लोगों को निकाला। बट वो लोग जिनके पास एक्सीलेंस है वो उस जॉब में बरकरार है। तो फर्स्टली बिकॉज आई होप वी हैव सम स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड 10+2 और जो ग्रेजुएशन है अभी कर रहे हैं,
उनको याद रखना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, कम नहीं होता। या तो आप ऐसा सब्जेक्ट चूज कीजिए जो कहीं नहीं है, सिर्फ गिने चुने लोगों के पास है। फॉर एग्जाम्पल सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत कम है दुनिया में। अगर आपके पास सीए है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आपको जॉब कहीं भी मिलेगी और अच्छी सैलरी मिलेगी। अगर आपके पास वो जॉब नहीं है जो स्पेसिफिक लोगों के पास है, जनरल जॉब है, या जनरल आपका कोर्स है, या जनरल आप स्टडी कर रहे हैं, तब आपको उसमें एक्सेलेंस दिखानी पड़ेगी। दिस इज द मोटिव एंड फॉर्मुलेशन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ योर करियर। नाउ प्रिपरेशन ऑफ ए पर्सनल प्रोफाइल, आप कैसे अपने आप को पर्सनली तैयार करें। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एक कंपनी में एक डिजाइन होता है ना, उसके लिए मैनेजर होता है, इसी तरह पर्सनल जिंदगी में भी आपको एक मैनेजर चाहिए। अपने जमाने में हम उसको मुर्शिद कहते थे। अब करियर का भी एक मुर्शिद होता है जो आपको बताएगा कि, जो आपको अंदर से निकालेगा कि आपके पास अच्छाई बुराई, यानी पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस किस चीज के लिए ज्यादा है। क्या आप इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, क्या आप टाइम देना चाह रहे हैं, आपको अचीवमेंट अच्छी लगती है, क्या आप उस काम में है जो आप करना चाह रहे हैं, या आप चेंज करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारे इंजीनियर ऐसे इंजीनियर है जो इंजीनियर तो है बाय डिफॉल्ट या किसी तरह कंपल्शन, सोशल कंपल्शन से वो इंजीनियर बन गए, बट वो अच्छे इंजीनियर नहीं, वो हमेशा अपनी जिंदगी से नाखुश रहते हैं कि वो इंजीनियर क्यों बने। ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारे डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर तो बन गए, सोशल कंपल्शन, फैमिली कंपल्शन, बट वो इससे खुश नहीं है। इसीलिए अपने आप से मशवरा करें, अपने कोच से मशवरा करें, अपने फैमिली से मशवरा करें कि आपको किस में ज्यादा अच्छा लगता है। जिसमें आपको अच्छा लगता है ना, उसमें आपको एक्सेलेंस करनी है, और एक्सेलेंस के बाद पूरी दुनिया आपके लिए ओपन है। इसके बारे में आपको और कुछ बताऊंगा मैं आगे। तो कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग range, personal and professional ranges. Number one, you have to identify the career goals. You have to see which career you want to take. You want to go for management, you want to go for science, you want to go for engineering, you want to go for humanitarian, no problem, take it, because goal setting is a continuous process. आपको देखना पड़ेगा और आपको फ्लेक्सिबल भी रहना पड़ेगा। अब आप कोई चाहेंगे कि मैं नासा में रॉकेट साइंस बनना हुआ, मतलब रॉकेट साइंटिस्ट बनना चाह रहा हूं। अब हर कोई तो रॉकेट साइंटिस्ट नहीं बनेगा। अगर आपका शौक भी है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। चलिए आप 4 या 5 गोल्स लिख के रखें और फिर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखें कि किस में आप ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं। नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एम्स। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोई बड़ी चीज अचीव करने के लिए छोटे छोटे रास्तों से गुजरना पड़ता है। आप डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकते। देखिए कश्मीर में हमारे पास फर्टाइल माइंड है। इकबाल ने कहा, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साथी। और सही भी, आपने देखा इकबाल खुद कश्मीरी था, बाहर निकला दुनिया भर में इकबाल बन गया। पंडित नेहरू को लिखिए फॉर एग्जाम्पल, वो भी एक कश्मीरी पंडित था, बाहर निकला तो एक पंडित बन गया, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया। इसी तरह बहुत सारे मिसालें हैं कि कश्मीरी जब बाहर निकलते हैं ना तो वो झंडा गाड़ते हैं दुनिया में। ये बात हमें मानना पड़ेगा कि हम टैलेंटेड हैं, बट ये बात भी हमें मानना पड़ेगा कि हम बहुत सुस्त हैं। हम बहुत ही सुस्त हैं। हम क्या करते हैं कि हम स्पून फीडर बनते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी हासिल हो जाए। देखिए मैं प्लांट बायोलॉजिस्ट हूँ। जब हम सीड को डालते हैं ना जमीन में, और हम क्योंकि सब एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, उसमें भी टाइम लगता है कि वो पहले बाहर निकले, एक छोटा सीडलिंग बने, फिर उसको हमें देखभाल करनी पड़ती है, फिर वो बड़ा ट्री बनता है, उसके बाद कुछ साल के बाद वो फ्रूट देता है। इसी तरह हमारा जो करियर है ना, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के बीच में चलता है। हमें एक अच्छे कोच के बाद ये देखना है कि हमें कैसे इस गोल को अचीव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि वी हैव टू स्टार्ट प्लानिंग इन एडवांस। सो व्हाट इज एडवांस? एडवांस होता है 5th ग्रेड पे, 6th ग्रेड पे, 8th ग्रेड पर ही आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। यस सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। कुछ सेकंड्स बाद अगर हम जूम कट जाएगा तो वी हैव टू रीस्टार्ट इट। no problem, don't worry, if it is happening please send me the link, I'm there. So I was telling you that planning is very important in the advance. We have to start with the planning. अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे और सिर्फ ख्वाब में रहेंगे, चलो अभी तो बहुत टाइम है, जो वो है ना एक कहानी चलती है, वो खरगोश और उसकी कहानी टोरोटाइज की, कि भाई मैं तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी मैंने क्या किया है, अभी तो भाई 5th में हूँ, अभी तो मैं 8th में हूँ, अभी तो मैं 10+2 मैंने किया है। Then you are losing the race because already somewhere some
place in the world, they have already started. And how can you and how could you win the race when already has started the race? So what I'm saying is that first of all, simple भाषा में वो ये कि आप अपना कैरियर जो गोल है उसको सेट कीजिए, एक ही नहीं 2 3 4 5 रखिए, उसके बाद देखिए उसकी स्ट्रैटेजी कीजिए कि कैसे मैं गोल को अचीव करूं। तीसरी चीज थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहिए कि चले ये नहीं हासिल होगा तो ये होगा, ठीक है, 2 3। और चौथी चीज, जब आप गोल को आप लें कि मुझे ये गोल करना है, मुझे अचीव करना है, तो आपको क्या करना है कि उसकी एक्सेलेंस के पीछे भागना है और उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे पगडंडियां, छोटे छोटे रास्ते बनाने हैं ताकि आप बड़े गोल को अचीव करें। सो प्लानिंग इज मस्ट इन एडवांस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और आप जो गोल अपनी जिंदगी का मकसद बनाएंगे दुनिया में, उसके लिए कुछ फैक्टर्स देखिएगा। इकोनॉमिक कंडीशन आपकी क्या है। अब मान लीजिए आप कोई ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहे जिसके लिए बहुत सारा पैसा दरकार हो, तो ये कंडीशन रखनी चाहिए कि आप वो फाइनेंस कैसे अरेंज करेंगे। सोशल चीजें भी देख लीजिए कि जो आप लेंगे, हालांकि देखिए कश्मीर के बाहर जितने भी सब्जेक्ट्स बच्चे लेते हैं ना, उनके लिए सोशल एक्सेप्टेंस होती है, बट कश्मीर में अगर आप रहना चाहते हैं और एक टैबू बना हुआ कि कुछ कोर्सेज है कुछ नहीं है, तो सोशल इंपॉर्टेंट चीज ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज, वी आर इन कश्मीर, वी नो बेटर देन ऑल दीज थिंग्स। टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, अगर हमारे पास 4G नहीं होगा, अगर हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कश्मीर में कोई बड़ी कंपनी खोलना चाहेंगे और 2 साल से हमारे पास 2G होगा तो कैसे चलेगा। सो लेट अस बी वेरी मच प्रैक्टिकल टू सी द टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज डेमोग्राफिक, कि जिस एरिया में मैं हूं उसमें क्या चीज चल सकता है। देन सी वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मॉडर्न एजुकेशन इज चेंज्ड। पुरानी जमाने की जो एजुकेशन थी ना वो डिफरेंट थी, आज का जमाने की एजुकेशन बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले जमाने में था कि स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए, आप बॉटनी के हैं सिर्फ बॉटनी, वो चेंज हो गया। अब जो जमाना है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी का, आपके पास बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए। पहले होता था कि कंप्यूटर जानने वाला ही कंप्यूटर खोलेगा, वो जमाना खत्म हो गया, उस जमाने को छोड़िए, आगे बढ़ना है। यू शुड हैव टू एक्वायर मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एवरी डे यू हैव टू लर्न। इट इज नॉट नाउ यू आर अ डॉक्टर, आप स्टॉप करेंगे, जैसे डॉक्टर को हम हर दिन अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा ना, ऐसे इंजीनियर को, ऐसे फिलोसफर को, ऐसे इंग्लिश जानने वाले को, ऐसे लिटरेचर वाले को, ऐसे सोशल साइंस वाले को। इसी को मैं कहता हूं एक्सेलेंस। until and unless you have this excellence point with you, you cannot adopt, you cannot acquire actually what actually is the career and how can you build your career, ये हमें याद रखना पड़ेगा। सो रिसर्च स्किल्स हमें डेवलप करने पड़ेंगे कि नए नए स्किल्स क्या आ रहे हैं, और इंपॉर्टेंट चीज की इंफॉर्मेशन लिटरेसी, कि जो भी चीजें नई आ रही है ना उस सब्जेक्ट में, आपको वो आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको कंप्लीटली देखना पड़ेगा क्रिटिकल थिंकिंग के साथ। और जो भी लिटरेचर आ रहा है, बुक्स की जो बुक पढ़ने की जो आदत है, लिटरेचर पढ़ने की जो आदत है, सिर्फ सोशल मीडिया से उधर इधर उठाने से वो कामयाब नहीं हो सकते। सो दिस इज एक्चुअली द मॉडर्न एजुकेशन। इफ यू एक्वायर दिस सॉर्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ये आप कभी भी अपने आप को लाचार और मतलब जिसको हम कहते हैं लाचार, उसको आप महसूस नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताऊं, एक बहुत मशहूर कहावत है कि अगर किसी इंसान को आप एक दिन उसकी भूख मिटाना चाह रहे हैं तो उसको मछली दे दीजिए, वो खाएगा मछली और उसकी भूख मिट जाएगी। मगर अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान पूरे जिंदगी भर भूखा ना रहे, तो उसको ये सिखाइए कि मछली कैसे पकड़ते हैं। सो दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज एक्चुअली द लेटेस्ट एंड मॉडर्न सेट ऑफ एजुकेशन। आपको मैं बताऊं एक चीज कि जो लेटेस्ट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, जिसको हम कहते हैं कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, अगर वो शुरू हो गई और जो उन्होंने उसमें कहा तो वो हो गया, देन इंडिया विल मूव वेरी मच अहेड। इसको याद रखना चाहिए कि वो जो एजुकेशनल पॉलिसी है ऑलरेडी इट इज इन रूल इन नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग फिनलैंड, इंक्लूडिंग यूएस, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, क्योंकि उसमें ज्यादातर स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है और अपने आप को स्किल डेवलपमेंट के बारे में मतलब उसमें काफी ज्यादा उसमें तवज्जो दी गई है। Now the other point is that motivation. See, if you want to develop the goal of your career, you have to be motivated. You have to generate the idea. You have to set the goal. You have to focus on your dreams. You have to stay positive, क्योंकि बहुत सारे मसाइल आते हैं हर दिन और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। Now when you have acquired कि आपको
सपोज फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा, या इस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि इसमें एवेन्यूज है 2-3 सब्जेक्ट्स, अब आपको बाहर जाना है या इंडिया में रहना है, तो आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपके लाइफ के ऊपर, आपके सब्जेक्ट के ऊपर। क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में आपने 3 साल, 5 साल, 10 साल दिए हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द यूनिवर्सिटी इज हैविंग सच सॉर्ट ऑफ कैलिबर वर्ल्ड वाइड कि उसको, उसके नाम को आप आगे ले लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कैम्ब्रिज से डिग्री हासिल की है, अगर आपने सिंगापुर से डिग्री हासिल की है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में, तो आप कहीं भी जाएं तो आपको मौका देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस यूनिवर्सिटी से, इस कॉलेज से आपने डिग्री हासिल की है, तो इससे आप ऐसे नहीं आए होंगे, आपके पास कुछ ना कुछ स्किल तो होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द यूनिवर्सिटी एंड दीज आर सम ऑफ द रूल्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है रैंकिंग, और इसके बाद ये यूनिवर्सिटी में इसकी रैंकिंग क्या है, इसका रिसर्च टीम क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है कैंपस का, ओवरऑल उसकी वैल्यू क्या है सोसाइटी में, पब्लिकेशन रिकॉर्ड क्या है, इन्वेंशन कितने होते हैं यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, इसी तरह इंडस्ट्रियल कैप और दूसरी चीजें हैं। हमारे पास जूम में सिर्फ 1 मिनट से कम रह गया है जो उनके पास जूम इस वक्त है। अगर ये कट ऑफ हो गया तो अभी हम दूसरा लिंक देंगे, उस पर आप आएंगे तो उसमें मैं फिर आपको और भी चीजें बताऊंगा 10-20 मिनट में, ताकि हम एक्चुअली समझे कि हमें कैसे अपने करियर को डेवलप करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है लेस देन अ मिनट इज देयर, इफ द जूम विल बी सर सबको बताएं कि सेम पासकोड है, लिंक सेम है, हम इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये जूम चूंकि 40 मिनट्स का लिंक होता है, अगर ये बंद हो जाए तो प्लीज आप उसी पे वापस आ जाइएगा, ताकि हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करें, और कुछ और बातें मुझे आपसे शेयर करनी है। इट इज शोइंग